start the next new chapters, that is virtual functions. So in these chapters, we are going to learn the rules of virtual function, limitations, need of virtual function, pure virtual function, static member function, then these pointers, abstract classes, virtual destructor in C++. So let's start with this. As we have studied earlier, that polymorphism refer to the property by which object belonging to the different class are able to respond to the same message, but in the different forms. So essential requirement of polymorphism is that the ability to refer to the object without any regard of their classes. So the necessity of this use single pointer variable to refer the object of a different class. So here, the compiler simply ignore the content of a pointer and choose the member function that matches the type of pointers. So how do we can achieve this type of polymorphism? So achieve using what is known as virtual function. Okay. मतलब virtual function का इस्तेमाल कब होने वाला है? That we are like declaring the same function name in the base class and the derived class. जैसे हम लोगों ने inheritance में पढ़ा है, base class क्या होता है, derived class क्या होता है, ठीक है? So base class is the parent class and derived class is the child class. So for example, base class में दो functions है, like display function है and show function है, and derived class में भी एक दो function है, display and show function है, जिसमें हम लोग जो base class का जो show function रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे virtual keyword करके declare करेंगे. So when we use the same function name in both the base and derived class, the function is a base class is a derived as a virtual. Okay. तो बेस क्लास का जो कोई भी फंक्शन रहेगा उसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे, यूज करेंगे एज अ वर्चुअल. तो C++ वर्चुअल फंक्शन इज अ मेंबर फंक्शन इन अ बेस क्लास दैट इज यू रिडिफाइन इन अ डिराइव्ड क्लास. मतलब रीडिफाइन करने वाले हम लोग, बेस क्लास में भी रहेगा एंड फॉर एग्जांपल शो मेथड है वो बेस क्लास में भी है एंड डिराइव्ड क्लास में भी है. ओके, एंड इट इज डिक्लेयर यूजिंग द वर्चुअल कीवर्ड. So virtual is a keyword preceding with the normal declaration of a function. So when the function is made virtual, C++ determine which function is to be invoked at runtime based on the type of the object pointed by the base class pointers. तो यहाँ पे हम लोग पॉइंटर का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं. तो पॉइंटर मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस को रिफर करेंगे यूजिंग द एरो पॉइंटर्स, स्टार पॉइंटर्स एक्सेट्रा एंड परसेंट साइन. ओके, so here when we function is a C++ determine which function to be invoked at runtime based on type of object pointed to the base class pointer. मतलब ये सब चीजें होने वाली है, वो कब होने वाली है? During the runtime only. मतलब जब भी आपका प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन रहेगा तभी. So it is a tell the compiler to perform dynamic linkage or later binding on the function. तो हम लोग ने रन टाइम बाइंडिंग एंड कंपाइल टाइम बाइंडिंग पढ़ा था कि कंपाइल टाइम में क्या क्या चेक होता है, रन टाइम में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म होते हैं. ओके, so there is a necessary to use the single pointer to refer to that object in the different class. So we can create a pointer to the base class and that refer to all the derived object. But when we have base class pointer contain the address of the derived class object, it will always execute the base class function. तो जब भी आप एक पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करोगे जो भी डिक्लेयर किया होगा लाइक बेस क्लास में सेम है डिराइव्ड क्लास, तो वो क्या करेगा, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट बेस क्लास के ही फंक्शन को कॉल करता है. तो ये इशू रिजॉल्व करने के लिए हमेशा हम लोग को यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड यूज करना है. तो वर्चुअली हम लोग क्या कर सकते हैं, जो शो मेथड रहेगा दोनों क्लास में, बेस क्लास में एंड डिराइव क्लास में. ओके, तो आप नॉर्मल एग्जीक्यूट करोगे तो दोनों वो क्या करेगा, बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा, नॉट इन द डिराइव क्लास. बट आपको डिराइव क्लास का फंक्शन कॉल करना है तो आपको वो पर्टिकुलर फंक्शन के आगे वर्चुअल लिखना है. ओके, तो यहाँ पे रूल्स ऑफ कुछ दिए, रूल ऑफ वर्चुअल फंक्शन. बिफोर प्रोसीडिंग विद दैट रूल वी विल सी वन एग्जांपल बेस्ड ऑन वर्चुअल फंक्शन. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, शेप इज अ बेस क्लास, फिर सर्कल इज अ डिराइव्ड क्लास दैट एक्सटेंड द प्रॉपर्टीज ऑफ शेप क्लास एंड स्क्वायर क्लास आल्सो द शेप क्लास को एक्सटेंड करते हैं. मतलब दिस इज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल है. तो इसमें देख सकते हो शेप क्लास में भी वर्चुअल ड्रॉ फंक्शन है जिसको हम लोगों ने वर्चुअली डिक्लेयर किया है. उसके बाद सर्कल क्लास में भी ड्रॉ फंक्शन है, ओवरराइड कर रहे हैं हम लोग उसको, अगेन वी आर राइटिंग द सेम थिंग. एंड उसके बाद स्क्वायर क्लास में भी आप देख सक रहे हो, मतलब देख रहे हो कि वहां पे भी ड्रॉ करके फंक्शन है. तो यहाँ पे सेम फंक्शन नेम यूज किया है, बेस क्लास, डिराइव क्लास, डिराइव क्लास. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग दैट जिसका आउटपुट क्या आने वाला है, तो इसका आउटपुट रहेगा क्रिएटिंग अ सर्कल एंड क्रिएटिंग अ स्क्वायर, क्रिएटिंग अ सर्कल एंड क्रिएटिंग अ स्क्वायर. ओके, तो पॉइंटर में नहीं यूज करता था तो मेरे को क्रिएटिंग अ शेप करके आउटपुट आता था, लेकिन अभी यहाँ पे मैं वर्चुअल कीवर्ड यूज कर रहा हूँ इन फ्रंट ऑफ ड्रॉ फंक्शन. तो वो जो बेस क्लास है उसका रिफर ना करके, मतलब वो क्या करेगा, इग्नोर करके वो क्या करेगा, जो डिराइव क्लास में है
ड्रॉ फंक्शन उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाला है। बट कैसे एग्जीक्यूट करेगा, कैसे कॉल करेगा? विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। अभी पॉइंटर देखो क्या होता है यहाँ पे। सो पॉइंटर लाइक स्टार शेप पॉइंटर, मतलब एक बेस क्लास का पॉइंटर क्रिएट किया है, मतलब जो शेप है। सर्कल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है सेकंड वाले क्लास का एंड थर्ड वाले क्लास का, मतलब ये दोनों डिराइव क्लासेस है, सर्कल एंड स्क्वायर, एंड द शेप इज द बेस क्लास। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, हमेशा बेस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, जो सर्कल क्लास है, ओके, उसका जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या करना है, पॉइंटिंग करना है, पॉइंटिंग टू द सर्कल ऑब्जेक्ट। ओके, पॉइंटिंग टू द सर्कल ऑब्जेक्ट, मतलब इसका जो एड्रेस है दैट विल असाइन टू दैट पॉइंटर, मतलब शेप पॉइंटर को। ओके, एंड दैट शेप पॉइंटर पॉइंटेड विद द एरो पॉइंटर्स विद द ड्रॉ फंक्शन। ओके, सो कॉल द सर्कल ड्रॉ मेथड, मतलब वो क्या करेगा, सी का एड्रेस, ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करेगा पॉइंटर में, एंड वो पॉइंट करेगा टू द ड्रॉ फंक्शन। सेम थिंग फॉर द सेकंड क्लास दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर क्लास का भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस हम लोग इसमें पास करेंगे, स्टोर करेंगे शेप पॉइंटर के अंदर। अगेन शेप पॉइंटर पॉइंटेड टू द ड्रॉ फंक्शन। ओके, तो जो स्क्वायर का ड्रॉ फंक्शन है उसको वो कॉल करेगा। फर्स्ट वाला पॉइंटर रहेगा वो सर्कल वाले मेथड को कॉल करता है, एंड सेकंड वाला है स्क्वायर ड्रॉ मेथड को यहाँ पे कॉल करता है। इसके वजह से हम लोग क्या कर रहे हो, उसको मतलब जो बेस क्लास में है उसको इग्नोर करके हम लोग जो डिराइव क्लास में है उसको यहाँ पे हम लोग आउटपुट करके सी आउट करके शो कर रहे हैं, दैट इज क्रिएटिंग अ सर्कल एंड क्रिएटिंग अ स्क्वायर। ओके, सो एग्जीक्यूट दिस कोड। Okay, done. So we'll move to the next program, rules of virtual functions. Okay, मतलब virtual function कैसे यूज करना है उसके कुछ रूल्स है। तो फर्स्ट इज दैट वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी मेंबर ऑफ सम क्लास। ओके, सो मेंबर मतलब ऑफकोर्स हम लोग क्लास के अंदर ही फंक्शन डिक्लेयर करने वाले हैं, तो वो मेंबर हो गया। ओके, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। वर्चुअल फंक्शन कैन नॉट बी द स्टैटिक मेंबर, वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए। ओके, बाय डिफॉल्ट वो जो भी होने दो, लेकिन वो स्टैटिक मेंबर नहीं होना चाहिए। वी कैन नॉट हैव वर्चुअल डिस्कंस्ट्रक्टर, बट वी कैन हैव वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। एक तो कंस्ट्रक्टर मतलब जहाँ पे क्लास नेम है एंड फंक्शन नेम है, तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टर है उसके आगे वर्चुअल कीवर्ड हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। कंसिडर द सिचुएशन व्हेन वी डोंट यूज द वर्चुअल कीवर्ड। सो कंसिडर द सिचुएशन व्हेन वी डोंट यूज द वर्चुअल कीवर्ड। ओके, ओके, मतलब कहाँ पे भी आई थिंक इसका ये नहीं है, मतलब कहाँ पे भी यूज करने से मतलब नहीं है उसका। जस्ट होल्ड ऑन, मैं इसको नहीं, दिस इज अ मतलब दैट इज नॉट अ वैलिड ये है। तो उसमें से फर्स्ट है कि मेंबर ऑफ अ क्लास होना चाहिए। उसके बाद सेकंड थिंग इज दैट फंक्शन कैन बी स्टैटिक नहीं होना चाहिए। देन कैन नॉट हैव वर्चुअल डिस्ट्रक्टर, ये भी पॉइंट करेक्ट है। ओके, देन उसके बाद एक्सेस वाया द पॉइंटर एंड रेफरेंस। वर्चुअल आपको अभी तक एग्जांपल देखा है, उसमें देखा कि पॉइंटर थ्रू हम लोग उसको रेफरेंस वेरिएबल थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद वर्चुअल कीवर्ड बेस क्लास में होना चाहिए। उसके बाद तो वर्चुअल डिस्ट्रक्टर है, डिफिनेशन लाइक डिफाइनिंग इन द बेस क्लास, मतलब वर्चुअल फंक्शन हमें हमेशा हम लोग को बेस क्लास में ही डिफाइन करना है। उसके बाद access specifier, a virtual function can have any access specifier like public, protected and private. Okay, then ये तो access through the object pointer ये तो हम लोगों ने देखा है। then they can be a friends from another class. Yes, a virtual function must be defined in the base class even though it is not in use. Okay, ये भी correct है। and the prototype of virtual function of the base class and all the derived classes must be identical. Okay, उसका जो प्रोटोटाइप है वो सेम होना चाहिए। सो इफ टू फंक्शन विद द सेम नेम बट डिफरेंट प्रोटोटाइप्स। ओके, सो हियर द सी प्लस विल कंसिडर देम इन द ओवरलोडेड फंक्शन। एंड ओवरराइडिंग अपना उसमें ऑप्शनल रहेगा। ओवरराइडिंग मतलब यूज ऑफ सेम फंक्शन इन द बेस क्लास always as well as in the derived class also. Okay, so these are the rules of virtual functions. Then limitation क्या है? The function call take highly slightly longer due to the virtual mechanism, and it also make the more difficult for the compiler to optimize the because it does not know the exactly which function is going to be called as a compile time. Okay, so एक उसका limitation होता है कि compile time में कौन सा function call करना है। ये थोड़ा सा जो function call रहेगा it will take a more time as compared with the other function calls. In complex system, virtual function can make it a little more difficult to figure out where the function is being called from. तो जब भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहता है तभी उसको पता नहीं चलता कि कहाँ से ये फंक्शन कॉल आ रहा है। ओके,
So ये थोड़ा more difficult होता है with the help of this virtual function. And virtual function will always will usually not be inline. Inline नहीं होता है. It is not मतलब in the sequence of execution. And the size of object increase due to the virtual pointer. Yes. तो pointer use करने से आपका memory space उतना acquire भी हो जाता है. Okay. So new memory is allocated at the time of creating a new pointers and assigning the values of our references to that particular pointers. तो एग्जाम्पल दिया है जो आप लोगों ने किया है बेस क्लास का. उसके बाद आता है नीड ऑफ वर्चुअल फंक्शन. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन विच इज अराइज, व्हाई डू वी नीड अ वर्चुअल फंक्शन. तो मैंने वो शुरुआत में बताया था आपको. सो सपोज वी डोंट हैव अ लिस्ट ऑफ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट ऑफ सुपर क्लास इन अ इनहेरिटेंस हायरार्की एंड वी विश टू इन्वोक द फंक्शन ऑफ इट्स डिराइव्ड क्लासेस with the help of single list of pointers, provided that the function is a superclass and the subclass have the same name on signature. Okay, दोनों का यहाँ पे बेस क्लास एंड डिराइव क्लास का दोनों का सेम सिग्नेचर होना चाहिए. ओके, तो सुपर क्लास मतलब आपका बेस क्लास हो गया एंड सब क्लास मतलब आपका डिराइव क्लास हो गया. सो दैट इज इन टर्म्स मींस वी वांट टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. उसके बाद आता है पुअर वर्चुअल फंक्शन. So in a normal practice, to declare the function virtual inside the base class and redefine in the derived class. So the function inside the base class is seldom to use to performing any task. It only serve as a placeholder. For example, if you do not define any object of a class media and therefore the function display in the base class has been defined empty, such a function is called do nothing function. Okay. So like you can say pure virtual function का meaning क्या होता है आपको? Do nothing. Do nothing में तो कुछ नहीं करना है. Just we have to write the virtual keyword void and display n is equal to 0. Okay. उसको do nothing function बोलते हैं. तो हम लोग we are assigning some values like zeros. So such a function is called the pure virtual function. So pure virtual function is a function declared in the base class that has a no definition relative to the base class. So in such a case, the compiler require each derived class to either define in the function and redeclare as a pure virtual function. Okay. तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग pure virtual function का. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं प्योर वर्चुअल कैन बी डिफाइन एज लाइक दिस. तो वर्चुअल वाइड डिस्प्ले इज इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो बेस क्लास बनाया है. ओके, जिसमें हम लोग ने प्योर वर्चुअल फंक्शन लिखा है दैट इज प्योर वर्चुअल वाइड ड्रॉ इज इक्वल टू 0. ओके, एंड ये वर्चुअल डिस्प्लेटर भी ऐड किया है. सो ये इसकी जरूरत नहीं है लेकिन वी हैव टू. So what is the pure virtual function? And the derived class, we can extend that shape class. Again एक नया क्लास लिया है derive, उसको भी हम लोगों ने shape class के साथ extend किया है. So drawing circle and drawing rectangle. और एक लिया है triangle that also extend the shape class, drawing triangle. Okay, so drawing circle, rectangle and triangle. In the main जहाँ पे execution होता है, initialize होता है, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? तीनों क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं. array of object भी बोल सकते हैं. That is pointed to that अरे ऑफ पॉइंटर्स बोलते हैं उसको. ठीक है, स्टार एंड द शेप दिया अरे ऑफ पॉइंटर. तो तीनों का भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वो हम लोगों ने अरे पॉइंटर्स बना दिया है. यूजिंग द फॉर लूप वी हैव लाइक हम लोग क्या करेंगे, हर एक ड्रॉप मेथड को यहाँ पे कॉल करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स सी द आउटपुट ऑफ दिस कोड लाइक ड्राइंग सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल. तो सीक्वेंस में मतलब यहाँ पे दैट सेट द मेन थिंग इज दैट हम लोग को ये लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को बेस क्लास में हम लोग को प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर करना है. ओके, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स हम लोग को क्या करना है, डिराइव क्लास का जो सी आउट है लाइक ड्राइंग सर्कल एंड वो डिस्प्ले करना है. फॉर दैट मतलब हर एक इसके लिए इंडिविजुअल कॉल करने से बेटर है उन्होंने क्या किया है, एक ही अरे ऑफ पॉइंटर्स में सारे स्टोर किए हैं ऑब्जेक्ट एंड हर एक को कॉल किया है और पॉइंट किया है विद द ड्रॉ फंक्शन. तो उसके मतलब क्या होता है, सो ड्रॉ ऑल द शेप्स और उसके बाद उसको क्या किया है, डिलीट भी कर दिया. ओके, इट इज डिलीटेड फ्रॉम द मेमोरी. सो डिलीट कीवर्ड कब यूज करते हैं, फॉर द डी एलोकेशन, मतलब जो एलोकेट किया था मेमोरी उसको फ्री करने के लिए. ओके, उसके बाद डिलीट शेप मतलब जो पॉइंटर है उसको यहाँ पे ये कर दिया है, फ्री कर दिया है. और एक सिंपल एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. जो स्टडी मटेरियल में दिया है उसमें भी एग्जांपल है. क्लास बेस इज अ वर्चुअल फंक्शन डिराइव विद द पब्लिक, एक्सटेंड द पब्लिक बेस क्लास. थर्ड है ओके, देन मेन क्लास में उसका पॉइंटर बनाया है. थ्रू दैट पॉइंटर्स हम लोग क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है डिराइव क्लास का उसका रेफरेंसेस पास करेंगे टू दैट पॉइंटर्स. ओके, एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, थ्रू दैट पॉइंटर वी आर पॉइंटिंग टू दैट शो मेथड्स. ओके, द डिराइव क्लास इज द डिराइव फ्रॉम द बेस क्लास. ओके, लाइक दिस. ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, डिराइव क्लास इज द डिराइव फ्रॉम द बेस क्लास. तो मतलब जो डिराइव क्लास का जो मेथड है शो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे. ओके, so this is on one of the simplest example from this
चैप्टर. ओके, अब दोनों में से कोई भी कर सकते हो. आपको ये करना है तो ये भी कर सकते हो, और यू कैन ट्राई फ्रॉम द स्टडी मटेरियल आल्सो. ओके, तो ये ट्राई करो कोड सब लोग. उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टैटिक फंक्शन एंड मेंबर फंक्शन. ओके, सो स्टैटिक फंक्शन एंड मेंबर फंक्शन यूज किसके लिए होता है? लाइक यू कैन से दैट कि आपको जब भी कोई किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना है और डायरेक्टली वो फंक्शन को आपको एक्सेस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्लास नेम और उसका फंक्शन नेम यूज करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. The proper definition of a static member function is that it is a special kind of function that belong to the class itself rather than any specific object. So static keyword is used to define those functions. They can directly call by using just the class name without creating an instance of a class. मतलब object created, which is an object. So object, without creating an object, you can call that function with the help of class name, scope resolution operator, and function name. Okay. So just wait, I'm showing that one to you. Example. Yes. तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जेक्ट काउंटर, मतलब ऑब्जेक्ट काउंटर क्या है? क्लास नेम है किसका? इसका. सो ऑब्जेक्ट काउंटर क्या है? क्लास नेम है. ओके, और उसके अंदर जो फंक्शन ये है फंक्शन, तो यू कैन से दैट शो काउंट, तो उसको ही डायरेक्टली कॉल करना है. ओके, यहाँ तो नीचे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, but no need of that, just you have to call that matlab object counter with the scope resolution operator and show count. Okay, so with the help of this you can call that particular show count method from that base class. Okay, so it's also one of the important question, exam point 5 marks के लिए पूछा जाता है with the help of examples. So in here, in example of my class, public static void display message, so static करके डिक्लेयर किया है आपके जो मेंबर्स है ऑफ दैट माय क्लास. ओके, तो इसमें सी आउट है हेलो वर्ल्ड. उसके बाद हम लोग को ये फंक्शन कॉल करना है विदाउट क्रिएटिंग अ इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट. ओके, तो यहाँ पे मैंने माय क्लास लिखा है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड डिस्प्ले मैसेज फंक्शन को कॉल किया है. ओके, इसमें आपका आउटपुट आने वाला है हेलो वर्ल्ड करके. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ static member and member function of a class. Okay, इसके भी कुछ रूल्स है. लाइक फर्स्ट यू कैन से दैट वी डिफाइन द क्लास, there is no access to the pointer with the static function as they do not write to an object instance. This function can be invoked using a class name. They can only work with the static member or other static function of the class. तो static member और static function रहेंगे, ही वो हेल्पफुल रहेगा. ओके, तो ट्राई दिस एग्जांपल. दिस पॉइंटर, so every object in the C++ has access to its own address through an important pointer called this pointer. So this pointer is an implicit parameter to all member function. Therefore inside the member function they may be used to refer to invoking object. So friend function do not have this pointer because friends are not a member of a class. Friends member of a class के नहीं होते हैं, उसको individually हम लोग डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं. So only member function have these pointers. So these pointers यहाँ पे कहाँ का यूज किया? Let's see. Yeah. So yeah, I'm sharing the example with you. यहाँ पे दिस कीवर्ड एक्चुअली वहां पे यूज होता है. ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंस्ट्रक्टर जहाँ पे बॉस क्लास है, कंस्ट्रक्टर भी है, उसमें 3 पैरामीटर पास किए हैं, वो भी डबल डेटा टाइप के. ओके, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करके सी आउट में लिखा है, हर एक का वैल्यू हम लोग ने असाइन किया लेंथ ब्रेथ हाइट को. ओके, जो ऑलरेडी आई थिंक लेंथ ब्रेथ हाइट, हाँ. ओके, देन उसके बाद वॉल्यूम एक फंक्शन लिया है जिसमें कैलकुलेशन होगा, रिटर्न करेगा. देन कंपेयर बॉक्स एंड बॉक्स, मतलब जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट पास करेंगे, एंड ऑब्जेक्ट पास करेंगे हम लोग यहाँ पे दिस पॉइंटर यूज करेंगे. ओके, सो दिस पॉइंटर्स विल बी लाइक यू कैन से इट इज एवरी ऑब्जेक्ट इन C++ हैज एक्सेस टू इट्स ओन एड्रेस. खुद के एड्रेस को ही एक्सेस करना होता है दिस पॉइंटर. तो इंपॉर्टेंट पॉइंटर इसको बोलते हैं दिस पॉइंटर. सो दिस पॉइंटर इज एन इम्प्लिसिट पैरामीटर्स
for all member function. Therefore, inside the member function, this may be used to refer to the invoking object. Object को invoke के लिए use करते हैं, okay? यानी यहाँ पे इसको हम लोग फ्रेंड फंक्शन में यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे डिक्लेरेशन पार्ट है लेंथ ब्रेथ हाइट का, ओके, जो यहाँ पे हम लोग ने यूज किया है। उसके बाद मेन फंक्शन में क्या किया है, जो कंस्ट्रक्टर है और क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ओके। तो बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 तीनों में डिफॉल्ट वैल्यू पास किया है। सो दैट वाली ओके, ये तो वैल्यू है यहाँ पे 2.2.0, ओके ओके, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डिक्लेयर बॉक्स 1 बॉक्स 2 एंड उसके यहाँ पे इफ बॉक्स 1 डॉट कंपेयर बॉक्स 2, मतलब दोनों का कंपेयर करेंगे, ओके। एंड बॉक्स 2 इज अ स्मॉलर, मतलब हर एक का वैल्यू का यहाँ पे कंपेरिजन होने वाला है। बॉक्स 2 इज स्मॉलर देन बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 इज इक्वल टू और लार्जर देन बॉक्स 2। सो यूजिंग इफ एल्स, मतलब यहाँ पे क्या किया है, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किया है। तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट कंपेयर इन द राउंड ब्रैकेट बॉक्स 2, ओके। सो दोनों का कंपैरिजन किया है। सो दैट विल बी हैपन टू दिस बॉक्स डॉट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, दिस पॉइंटर टू वॉल्यूम वाले ही फंक्शन को कॉल किया है बॉक्स डॉट वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पास किया है टू दैट ऑब्जेक्ट वी आर एक्सेसिंग दैट वॉल्यूम। तो हर तीनों का दोनों का भी वैल्यू का कंपैरिजन होगा, कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन होने के बाद वो क्या करेगा, रिजल्ट को रिटर्न करेगा एंड ओके, एंड दैट विल बी स्टोर दिस इन द दिस पॉइंटर्स, ओके। थ्रू दैट दिस पॉइंटर्स वी विल कंपेयर दिस बोथ द ऑब्जेक्ट टुगेदर, मतलब जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल बॉक्स 1 का कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट आया एंड बॉक्स 2 का अलग आया, तो दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन होने वाला है। सो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर इज कॉल, कंस्ट्रक्टर इज कॉल 2 टाइम्स आ गया, बिकॉज जैसे हम लोग ने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अभी यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ना, 2 टाइम कंस्ट्रक्टर इज कॉल आया, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, कंपैरिजन किया, तो बॉक्स 2 इज इक्वल टू और लार्जर देन बॉक्स 1। तो बॉक्स 2 का वैल्यू है, मतलब बॉक्स 2 का जो फॉर्मूला लेके हम लोग ने कैलकुलेशन किया है, फाइनल वैल्यू जो आया है वो बड़ा है एज कंपेयर विद द बॉक्स 1, ओके। So this is a use of this pointer in the C++. So this point to the volume function, okay, which is also the वो कंपेयर कर रहा है यहाँ पे, which is greater than box to box dot volume से, मतलब खुद का ही ऑब्जेक्ट के थ्रू वो दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे कर रहा है with the help of this pointer. Try this example. The next topic is the abstract class. Okay. So abstract class is a very simple है, जिस बेस क्लास में ओके प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, ओके, जो हम लोगों ने अभी अभी स्टडी किया है, जिस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल वर्चुअल और यू कैन से एनी रिटर्न टाइप एंड फंक्शन नेम एंड पैरामीटर विच इज इक्वल टू 0, ओके। जिस बेस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उस क्लास को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं, ओके। So where that abstract class is a class in which C++ which have at least one pure virtual function. जिस क्लास में सिर्फ एक भी फंक्शन रहेगा तो इट इज कॉल्ड एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं और की फीचर्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के, लाइक फर्स्ट इज दैट abstract class can have a normal function and a variable too along with the pure virtual function. Abstract class cannot be initialized and but pointers and references of an abstract class type can be created, okay. तो उसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन उसके पॉइंटर थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके जो रेफरेंसेस है उसको एक्सेस कर सकते हैं। So here the abstract class are mainly used for upcasting so that the derived class can be its interface. तो derived class को आपको इंटरफेस बनाना है और upcast करना है, तो वहाँ पे abstract class यूजफुल है। So if an abstract class has a derived class, okay, मतलब फॉर एग्जाम्पल जिस बेस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, बट डिराइव क्लास में क्या है, इट्स विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑल प्योर वर्चुअल फंक्शन और एल्स दे विल बिकम अ एब्स्ट्रैक्ट। तो डिराइव क्लास में भी जो फंक्शन रहेंगे और इम्प्लीमेंटेशन रहेगा तो आप उसको वर्चुअली डिक्लेयर कर सकते हो, वो भी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट करके कॉल कर सकते हैं उसको। सो वी कैंट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एज वी रिजर्व अ स्लॉट फॉर प्योर वर्चुअल फंक्शन, ओके। सो बट वी डोंट हैव पुट एनी एड्रेसेस, सो virtual table will be remain the incomplete, okay. So any example that will be based on like a abstract class जिसके अंदर हम लोग प्योर वर्चुअल फंक्शन का आते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन लेना है जिसके अंदर आपका वर्चुअल बेस क्लास डिक्लेयर किया रहेगा, ओके।
same example we are doing here again. Okay, so this is a abstract classes. Okay, so shape is the abstract class. Okay, circle वगैरह ये derived classes हो गए हैं. Again, drawing circle, drawing rectangle, and drawing triangles. नेक्स्ट टॉपिक इज द वर्चुअल डिस्ट्रक्टर. ओके, तो इसका भी हम लोग ने एग्जांपल किया था जिसमें हम लोग नेगेशन साइन यूज करके हम लोग ने वर्चुअल डिस्ट्रक्टर यूज किया था. तो इसमें क्या करना है, आपको जस्ट बेस क्लास क्रिएट करना है. ओके, इन दैट कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करना है. मतलब यहाँ पे आपका बेस क्लास एंड कंस्ट्रक्टर नेम, मतलब जो कंस्ट्रक्टर है, मतलब जहाँ पे क्लास नेम और फंक्शन नेम सेम होता है उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं. ओके, एंड उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद आपको क्या करना है, और एक बेस क्लास बनाना है जिसके सामने आपको वर्चुअल कीवर्ड एंड नेगेशन सिंबल यूज करना है. सो दैट विल डिफाइन द वर्चुअल डिस्ट्रक्टर फंक्शन टू कॉल द डिस्ट्रक्टर डिराइव फंक्शन. ओके, एंड इन द मेन फंक्शन, दिस इज अ डिराइव क्लास का है, तो इसका भी डिस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट किया है जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर चैप्टर में. ओके, उसका यूजफुल क्या होता है. तो थ्रू दैट बेस पॉइंटर, तो यहाँ पे बेस पॉइंटर क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यू डिराइव क्लास. तो पॉइंटर ऑब्जेक्ट रेफरेंस टू द बेस क्लास. तो जो ऑब्जेक्ट हम लोग पॉइंटर क्रिएट करने वाले हैं वो हम किसको पॉइंट करेगा, बेस क्लास को पॉइंट करेगा. ओके, एंड थ्रू दैट वी विल डिलीट दैट पॉइंटर्स. ओके, मतलब वंस वी हैव क्रिएटिंग अनएलोकेटेड मेमोरी इन द रैम, और उसको हम लोग क्या करेंगे, फ्री करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिलीट कीवर्ड. ओके, सो दिस इज अ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट होल्ड ऑन. मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ. ओके, तो देखो ये बेस क्लास है, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना दिया है. ये वर्चुअल बेस क्लास है, वर्चुअल बेस कंस्ट्रक्टर. ओके, जैसे क्लास नेम एंड फंक्शन नेम सेम होता है विद द वर्चुअल कीवर्ड. ओके, बेस डिस्ट्रक्टर बोलते हैं. देन उसके बाद मतलब ये हम लोग ने एग्जांपल देखा था, एक्सेप्ट दिस ये नहीं था, वर्चुअल कीवर्ड नहीं था. मतलब कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर चैप्टर में हम लोग ने डिस्ट्रक्टर वाला एग्जांपल देखा था जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करते हैं. ओके, यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड है, तो वर्चुअल कीवर्ड के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, आपको पॉइंटर थ्रू है उसको एक्सेस करना पड़ता है. तो यहाँ पे हम लोग पॉइंटर लेंगे विच इज पॉइंटेड टू द बेस क्लास. ओके, अगेन एक डिराइव क्लास लिया है, उसको भी बेस क्लास से एक्सटेंड किया है, कनेक्ट किया है. वहाँ पे भी सेम कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर यूज किया है, डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर एंड डिराइव क्लास का डिस्ट्रक्टर. ओके, एंड द मेन क्लास बेस क्लास का पॉइंटर क्रिएट करके उसको पॉइंट किया है. मतलब कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि देखो जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो उसको कॉल करता है. ओके, जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद, कॉल करने के बाद तो कॉल होता ही है, लेकिन विदाउट कॉलिंग वी कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर फंक्शन फ्रॉम दैट कंस्ट्रक्टर. तो इसमें हम लोग को देखो बेस कंस्ट्रक्टर, डिराइव डिस्ट्रक्टर एंड बेस डिस्ट्रक्टर, ये तीनों चारे हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं. तो इसमें से फर्स्ट है, जैसे आपने बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लिया है, तो बेस क्लास में क्या है, बेस कंस्ट्रक्टर. ओके, उसके बाद डिराइव कंस्ट्रक्टर, बिकॉज वर्चुअल है ना, वर्चुअल हम लोग क्या करते हैं उसको इग्नोर करवाते हैं. तो बेस कंस्ट्रक्टर होने के बाद डिराइव कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद डिराइव डिस्ट्रक्टर यूज होता है, फिर देन बेस डिस्ट्रक्टर यूज होता है लास्ट में. ओके, ड्यू टू दिस आफ्टर डिलीटिंग दैट पर्टिकुलर बेस पॉइंटर्स. ओके, इसको भी एग्जीक्यूट करो. So this is the last topic from these chapters, that is virtual destructors. Okay. So from these chapters, important questions are what is the virtual function? Explain with the example. Also the state the rules of virtual functions, limitation. तो अराउंड 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको ये इसके ऊपर पूछा जा सकता है. प्योर वर्चुअल फंक्शन 5 मार्क्स के लिए आएगा. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्योर वर्चुअल फंक्शन विद द हेल्प ऑफ. तो C++ में आपको किसी भी क्वेश्चन पूछा तो उसमें एग्जांपल कंपलसरी आपको लिखना ही है. ओके, और ये भी आ सकता है मतलब ये दो क्वेश्चन है, प्योर वर्चुअल फंक्शन और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दोनों एक ही है. ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास आया तो भी आपको प्योर वर्चुअल फंक्शन का कोड लिखना है, एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन आया तो भी आपको सेम कोड लिखना है. उसके बाद वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का एक एग्जांपल है, दैट विल बी लाइक
5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है आपको। okay? We will do the practicing of codes. आज के लिए हम लोग 2 कोड लेते हैं। दैट इज द फर्स्ट, राइट ए C++ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर। एक सिंपल कैलकुलेटर करके एक एप्लीकेशन बनाना है। ओके, आफ्टर द कोड लिखने के बाद आपको उसको चैट बॉक्स में पोस्ट करना है। ओके, so that these are the example included in our practical examinations। जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए ये सारे प्रोग्राम्स हैं, तो उसमें से हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम का प्रैक्टिस करेंगे। दैट इज अ राइट ए C++ प्रोग्राम टू क्रिएट द सिंपल कैलकुलेटर। ये प्रोग्राम करने के लिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन, पेज नंबर इज 39। दिस इज द फर्स्ट वन। तो इसके लिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है फर्स्ट प्रोग्राम के लिए कि स्विच स्टेटमेंट, मतलब स्विच के स्टेटमेंट यूज करना है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ऑपरेटर के लिए एक वेरिएबल लेंगे, देन उसके बाद ए एंड बी 2 वेरिएबल लेंगे जिसमें हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, एंड एक रिजल्ट वाला वेरिएबल लेंगे, वो भी डबल डेटा टाइप में रहेगा। फिर यूजर से क्या लेना है, आपको इंटर एंड ऑपरेटर लेना है, उसमें से यूजर प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन यूज करेगा। उसके बाद 2 नंबर्स ऐड करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे फ्रॉम द यूजर्स, देन 2 नंबर्स हम लोग स्टोर करेंगे इनटू द वेरिएबल ए एंड बी। ओके, और जो ऑपरेटर है हम लोग क्या करेंगे, स्विच के अंदर पास करेंगे। तो उसमें केस में फर्स्ट रहेगा प्लस, केस में दूसरा रहेगा सब्ट्रैक्शन, थर्ड में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और एक डिफॉल्ट केस रहेगा। ओके, सो जैसे हम लोग प्लस वाले ऑपरेटर को कॉल करेंगे तो हम लोग दोनों को एडिशन करेंगे, माइनस किया तो दोनों का सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन चूज किया तो मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन चूज किया तो डिवाइड होगा। ओके, so that type of example will be executed here with the help of switch case statement. Okay, so everyone please execute this code. Please share the code in the chat box if you are done. Okay, so don't take help of like a chat GPT and AI. Okay, so think before, मतलब आपने थोड़ा सोचने का तरीका अलग होना चाहिए। तो मैंने जैसे बताया था कि आपको 2 वेरिएबल चाहिए वैल्यू स्टोर करने के लिए, देन एक ऑपरेटर वेरिएबल चाहिए कैरेक्टर स्टोर करने के लिए। ओके, आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो, क्योंकि चैट जीपीटी एंड ये एआई रहेगा, उससे तो आपको तुरंत आंसर मिलेगा, लेकिन ये सारा एग्जाम में आपको आना चाहिए, और दैट इज हैव टू एग्जीक्यूट दिस। और आप कहाँ पे गलत हो तो वो आपको कंपाइलर बताएगा कि कहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, ठीक है। इन द प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपको एक टास्क दिया था, एक प्रोग्राम करने के लिए बोला था, लाइक डिजाइन ए क्लास कॉम्प्लेक्स फॉर एडिंग 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड आल्सो शो द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर। ओके, सेम कोड आई एम शेयरिंग इन द चैट बॉक्स। So make the appropriate changes for your compatible to the compilers. Okay. So logic मैंने share किया in the chat box. तो यहाँ पे जो आपको सेकंड कोड दिख रहा है, राइट अ C++ प्रोग्राम टू कन्वर्ट द सेकंड इनटू आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स, एंड स्क्वायर, कोन एंड रेक्टेंगल, ये 2 प्रोग्राम आपको एज अ होमवर्क करेंगे। आई विल शो दिस एग्जांपल इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू एवरीवन।